Parliament of India, Lok Sabha, House of the People. Parliament is the supreme legislative body of India. It plays a central role in the governance of the country by making laws, overseeing the executive and controlling finances. Article 79 to 122 of Part 5. Part 5 का आर्टिकल 79 से लेके 122 तक of the Constitution deal with the Union Parliament. Composition of Parliament क्या है? Article 79. Article 79 to 122 of Part 5. According to Article 79, the Parliament of India consists of President of India, Lok Sabha, House of the People, Rajya Sabha, Council of the States. Lok Sabha क्या है? Basic details. Known as the House of the People, since it directly represents citizens. मतलब ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है सिटीजन्स को. मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 मेंबर्स, 530 फ्रॉम द स्टेट, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज. करंट स्ट्रेंथ क्या है एज ऑफ 2024? 543 हैं. 524 फ्रॉम स्टेट्स एंड 19 फ्रॉम यूटीज. कितने? 524 फ्रॉम स्टेट्स एंड 19 फ्रॉम यूटीज. 2 states from Anglo-Indian community, Article 331, were abolished by 104th Constitutional Amendment Act 2019. Came into effect on 25th January 2020. ठीक है. Anglo-Indian representation. Previously, the president could nominate 2 members if the community lacked representation. This provision was discontinued with the 104th Amendment. Seat allocation based on population, derived from the census of 1971, frozen till year 2026 by 84th Constitutional Amendment Act 2001. This was done to encourage population control across states. Tenure of Lok Sabha, normal term 5 years from the first sitting after a general election. ये tenure of Lok Sabha, normal term 5 first sitting from the first sitting. देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, first sitting after a general election. Dissolution can be dissolved earlier by the president. Emergency provision, Article 352. During national emergency, Lok Sabha's term can be extended by one year at a time. It can't be continued beyond 6 months after emergency ends. Lok Sabha term can be extended by 1 year at a time. और मतलब 1 साल तक तो चल सकता था, लेकिन वो 6 मतलब अगर इमरजेंसी ख़त्म हो गई तो मैक्सिमम 6 महीने तक चल सकता है, उसके बाद नहीं. क्वालिफिकेशन फॉर लोक सभा मेंबरशिप, आर्टिकल 84. To be eligible, must be a citizen of India, must be at least 25 years old, must be registered as an elector, must take an oath or affirmation, must possess their qualification prescribed by Parliament. Speaker and Deputy Speaker, Article 93 and 94, elected from among Lok Sabha मेंबर. ये लोकसभा मेंबर के ही मतलब उसमें इलेक्ट होंगे. स्पीकर रोल, प्रिसाइडेड ओवर सेशंस का मतलब अध्यक्षता करता है, मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम, डिसाइड ऑन क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, डिसाइड ऑन डिसक्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल. ये स्पीकर ही होता है जो डिसाइड करता है डिसक्वालिफिकेशन को लेके. ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. कैन सस्पेंड मेंबर्स को सस्पेंड भी कर सकता है. डिप्टी स्पीकर एक्ट इन द अब्सेंस ऑफ स्पीकर. रेसिग्नेशन, आर्टिकल 94B, स्पीकर रिजाइन्स बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर एंड वाइस वर्सा. और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को वो करके अपना मतलब रेसिग्नेशन दे सकते हैं. 104th अमेंडमेंट 2019 में आया था. एबोलिश्ड एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन. 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में डिलिमिनेशन फ्रीज टिल 2026.
42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, स्ट्रेंथेंड इमरजेंसी प्रोविजंस, स्ट्रेंथेंड इमरजेंसी प्रोविजंस। Parliamentary sessions, summoning and dissolution. President summons each session of Parliament and can dissolve Lok Sabha. Type of session: budget session, February May. Monsoon session, July August. Budget session February May. Monsoon session July August. Winter session November December. Special sessions may be convened on President's recommendation. रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? ये 104 2009-19 में, एबोलिश्ड एंग्लो इंडियन 84 2001 में, मतलब ये इसमें डेलिमिनेशन को बढ़ा दिया गया 2026 तक। 42nd स्ट्रेंथेंड 1976 स्ट्रेंथेंड इमरजेंसी प्रोविजंस। लोकसभा लोअर हाउस डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स, मोर पावरफुल इन फाइनेंशियल मैटर्स। राज्यसभा अपर हाउस रिप्रेजेंट स्टेट्स, मोर परमानेंट, नॉट ऑब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन। सेंसस पॉपुलेशन डाटा कलेक्टेड एवरी 10 years. 1971 data still used for seat distribution. Delimitation redrawing of boundaries of Lok Sabha constituency based on population currently frozen. National emergency Article 352 imposed during war, external aggression and armed rebellion alters legislative and executive power significantly. Tenure extension only possible during emergency under Article 352. Speaker neutral authority critical for functioning of Lok Sabha appointed under Article 93. ये न्यूट्रल अथॉरिटी होती है, ये ध्यान रहे। स्पीकर न्यूट्रल अथॉरिटी। 25 जनवरी 2020 से क्या हुआ? इंड ऑफ एंग्लो इंडियन सीट नॉमिनेशन। 2026 ईयर वन डेलिमिनेशन में रिज्यूम। 1971 सेंसस स्टिल यूज्ड फॉर सीट एलोकेशन। 104th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 2019 में। रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 94 डील्स विद द वैकेशन एंड रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। Removal process can be removed by a resolution of Lok Sabha passed by an absolute majority. That is majority of the total membership of the house. Can be removed by a resolution of Lok Sabha passed by an absolute majority. That is majority of the total membership of the house. Article 94 deal with vacation and removal of the speaker या डिप्टी स्पीकर। रिमूवल प्रोसेस कैन बी रिमूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ लोक सभा पास्ड बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। A 14-day notice must be given before moving such a resolution। मतलब सिर्फ लोकसभा से ही हटाया जा सकता है। ड्यूरिंग रिमूवल प्रोसेस स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कांट प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग, ये मतलब नोटिस पीरियड में ये प्रिसाइड नहीं कर सकते। हाउएवर दे कैन टेक पार्ट इन डिबेट्स एंड वोट बट कांट एक्सरसाइज कास्टिंग वोट इन केस ऑफ ए टाई। और टाई होने पे ये अपना कास्टिंग वोट भी नहीं दे सकते। They can vote only in the first instance। ये पहले ही मतलब देंगे, टाई वही होने वाले मामले पे नहीं दे सकते, फर्स्ट इंस्टांस पे ही ये दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। पावर्स एंड रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोअर हाउस के। फाइनल अथॉरिटी ऑन मैटर्स एंड द प्रोसीजर्स एंड डिसिप्लिन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस, फाइनल अथॉरिटी ऑन मैटर्स ऑफ प्रोसीजर एंड डिसिप्लिन।
decides on disqualification of MPs under 10th schedule anti-defection law, has a casting vote in case of a tie, आर्टिकल 100। मतलब ये तब होगा जब कोई बिल फंसा हो, लेकिन अगर उन्हीं के ऊपर मतलब उन्हीं के ऊपर उनको रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है तब वो कास्टिंग वोट नहीं दे सकते हैं। मतलब कास्टिंग वोट मतलब टाई होने पे वो पहले ही अपना वोट दे देंगे। लोकसभा सेक्रेटरीट डायरेक्टली फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पीकर। लोकसभा सेक्रेटरीट स्पीकर के अंडर काम करता है। प्रोटेम स्पीकर, व्हाट इज प्रोटेम स्पीकर? ए टेम्पोरेरी स्पीकर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू प्रोसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। एडमिनिस्टर्स ओथ टू न्यू मेंबर्स, आर्टिकल 99। ये ओथ दिलवाते हैं नए मेंबर्स को। इलेक्टेड बाय कन्वेंशन फ्रॉम द सीनियर मोस्ट मेंबर। ये एक प्रथा चलती आ रही है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे वही क्या होंगे, अरे मतलब ओथ दिलवाएंगे, वही प्रोटेम स्पीकर होंगे। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 85(1). प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज when he she thinks fit, but there should not be gap more than 6 months between two sessions. Minimum 2 sessions per year required by the constitutions। ठीक है। मतलब सम्मन मतलब ये होता है कि बुलावा, मतलब प्रेसिडेंट सम्मन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एज व्हेन ही सी थिंग्स फिट। 6 महीने का गैप नहीं हो, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन में, और साल में 2 सेशन एकदम कंपलसरी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। कोरनम, आर्टिकल 103। मिनिमम प्रेजेंस ऑफ 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट हाउस बिजनेस। मतलब 1/10 लोग प्रेजेंट होने चाहिए एकदम, ये ताकि मतलब बिजनेस हाउस चल सके। सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन लोकसभा, स्टेट वाइज लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश 80 है, महाराष्ट्र 48 है, वेस्ट बंगाल 42 है, यूपी 80, महाराष्ट्र 48 और वेस्ट बंगाल 42, बेस्ड ऑन 1971 सेंसस as per 84th Constitutional Amendment Act 2001। Expenditure limits for elections as per ECI notification January 2022 के अकॉर्डिंग। लोकसभा इलेक्शन में पहले 70 लाख था, अब 95 लाख हो गया जनरल स्टेट्स में। स्मॉलर स्टेट्स में पहले 54 लाख था, अब 65 लाख हो गया है। जनरल इलेक्शन में पहले 70 लाख था, अब 95 लाख हो गया है। स्मॉलर स्टेट में पहले 54 लाख था, अब 65 लाख हो गया है। असेंबली इलेक्शंस जनरल स्टेट्स में पहले 28 लाख था, 40 लाख हो गया है। स्मॉलर स्टेट पहले 20 लाख था, अब 28 लाख हो गया है। तो मतलब लोकसभा में मतलब 95 और 65 हो गया है। 95 बड़े और 65 छोटे। लोकसभा में क्या मतलब सॉरी विधानसभा में क्या हुआ है, 40 लाख बड़े स्टेट्स में, 28 लाख छोटे स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस में। ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 to 52 कब हुआ था? कंडक्टेड 25 अक्टूबर 1951 to 21 फरवरी 1952। सीट्स 489 थी और पहली मीटिंग हुई थी 13 मई 1952 को। मतलब कंडक्ट हुआ था 25 अक्टूबर 1951, मतलब इलेक्शन शुरू हुआ था 21 फरवरी 1952 तक चला था। सीट्स 489 थी और पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी 1952। फर्स्ट स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। सर्व टिल 27 फरवरी 1956, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक।
पहले डिप्टी स्पीकर थे M.A. अयंगर जी, तिरुपति, M.A. अयंगर। पहली वुमेन स्पीकर थी मीरा कुमार जी। नो कॉन्फिडेंस मोशन 1954 में आया था। फर्स्ट सच मोशन अगेंस्ट स्पीकर मावलंकर लेड बाय J.P. कृपलानी जी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था। करेंट स्पीकर ओम बिरला जी हैं, ये देख लिया जाए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, नॉट जस्ट दोज प्रेजेंट और एंड वोटिंग। मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी, वो सिर्फ नहीं जो वहाँ प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, पूरे हाउस का। कास्टिंग वोट, टाई ब्रेकिंग वोट एक्सरसाइज्ड बाय द स्पीकर व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड। मतलब कास्टिंग वोट मतलब ऐसा वोट जब इक्वली डिवाइडेड हो गया, 10 वोट इधर 10 वोट इधर, अब जो है स्पीकर का ही वोट मायने रखेगा तब। लेकिन ये किसी बिल में है, अगर स्पीकर के ही खिलाफ मामला चल रहा है तो उनको अपना वोट पहले ही देना पड़ेगा। कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट 1/10 टू कंडक्ट बिजनेस इन द हाउस। Pro-tem speaker, temporary speaker who administers oath and conduct the first meeting until a permanent speaker is elected. Sessions period during which parliament meets to conduct its business. Article 85 empowers the president to summon and prorogue sessions of the parliament. Summon and prorogue. Article 100 deals with voting in parliament and quorum requirements. ठीक है, तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग PYQs पे चलते हैं। मिनिमम एज ऑफ कंसेंट लोकसभा, मतलब व्हाट इज मिनिमम एज लेट डाउन फॉर ए पर्सन टू सीक इलेक्शन इन लोकसभा? 25 ईयर्स। आर्टिकल 84B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ए पर्सन कैन नॉट बी इलेक्टेड टू बी चूजन टू फिल ए सीट इन द हाउस ऑफ द पीपुल अनलेस ही इज नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ हिज एज। और ये लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 ईयर्स। फंडामेंटल वाई 18 इज इनकरेक्ट, क्योंकि 18 साल जो होता है वो वोटिंग एज होता है आर्टिकल 326 के हिसाब से। और ये कब बदला गया? 61st अमेंडमेंट 1988 में। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग के बारे में बताता है। आर्टिकल 326 ये बताता है कि 18 साल के उम्र के मतलब जो हो चुके हैं 18 साल तक के लोग, वो वोट दे सकते हैं। और ये कब संशोधन हुआ था? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। मिनिमम एज फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है? 25 ईयर है। दिस रिफर्स स्पेसिफिकली टू लोकसभा अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है, 84B में है ये। इन ऑर्डर टू बी ए चूजन ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ए पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन एज ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल से कम नहीं होने चाहिए। रिटरेट्स द सेम एज आर्टिकल 84B। और राज्यसभा के लिए 30। विच वन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ लोकसभा? बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज है, कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन है। इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं, ये इलेक्शन कमीशन करता है। प्रेसिडेंट प्रोवाइड्स स्टाफ ऑन ECI's रिक्वेस्ट, ये बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन है सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। Therefore, electorals are not prepared under president but by election commission. इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो होता है, ठीक। और प्रेसिडेंट प्रोवाइड करते हैं स्टाफ्स को, मतलब जो भी स्टाफ मांगता है इलेक्शन कमीशन मतलब अपने बिहाफ पे वो करते हैं। आर्टिकल 326 इलेक्शंस आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, एवरी सिटीजन अबव 18 हैज़ राइट टू वोट। इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324। आर्टिकल 324(6)
प्रेसिडेंट और गवर्नर मेक्स स्टाफ अवेलेबल टू ECI फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। मतलब स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये जिम्मेदार होते हैं, मतलब स्टाफ के लिए प्रेसिडेंट या गवर्नर। हु कैन फाइल नॉमिनेशन फॉर लोकसभा? एनी सिटीजन हुज नेम अपीयर्स इन इलेक्टोरल रोल। तो वो क्या होगा, वो लोकसभा के लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कर सकते हैं। सेक्शन 4D रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ए पर्सन कैन कंटेस्ट इफ ही सी इज सिटीजन ऑफ इंडिया, हिज हर नेम इज रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका नाम है तो वो लड़ सकते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू बी रेसिडेंट ऑफ सेम कॉन्स्टिट्यूंसी। ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के वो होने चाहिए, वो कहीं के भी हों वो कर सकते हैं। Basis of state-wise allocation in Lok Sabha. The state-wise seat allocation in Lok Sabha is based on population. Article 81 allocation of seat to state is in proportion to population. ये किसके proportion पे है? Population के proportion पे है। Objective क्या है? Ensure equal representation for equal segments of population based on 1971 census until the year 2026 as per 84th Constitutional Amendment Act 2001। 42nd Amendment Act 1976 में क्या होता है, डेलिमिनेशन को फ्रोज कर दिया गया था 2001 तक। फिर 87th Amendment 2003 में क्या हुआ, used 2001 census for constituency boundaries but not seat एलोकेशन। मतलब जो 2001 वाला डेलिमिनेशन हुआ उसमें सीट एलोकेशन को लेके, मतलब सीट के एलोकेशन को लेकर नहीं हुआ, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाउंड्रीज को चेंज करने के लिए हुआ। ठीक। एरिया नॉट ए फैक्टर अंडर आर्टिकल 81, एरिया का कोई फैक्टर नहीं है। पॉवर्टी नॉट रिलेवेंट इन सीट डिस्ट्रीब्यूशन, लैंग्वेज also not a factor though considered in a linguistic reorganization state 1956, not in seat distribution। ठीक। तो पॉपुलेशन 2001 में जो हुआ था वो सिर्फ सीट के एरिया को लेकर हुआ था, सीट के एलोकेशन को लेकर नहीं हुआ था। विच सेंसस इज यूज्ड फॉर सीट एलोकेशन 1971। हाँ, according to article 82 the allocation of seats in Lok Sabha to state is on the basis of विच सेंसस 1971 में जो सेंसस हुआ था। आर्टिकल 82 प्लस 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 सीट एलोकेशन फ्रोजन बेस्ड ऑन 1971 सेंसस टिल 2026 डन टू इंकरेज पॉपुलेशन कंट्रोल, मतलब ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट रिवीजन में हैपन आफ्टर फर्स्ट सेंसस पोस्ट 2026 पॉसिबली इन 2031 सेंसस। ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर। आर्टिकल 324 इलेक्टोरल रोल मेंटेन कंस्टिट्यूएंसी वाइज रिवाइज रेगुलरली। इलेक्टोरल रोल जो है कंस्टिट्यूएंसी वाइज और रिवाइज होता रहता है हमेशा, जैसे 1 जनवरी तक कट ऑफ होता है, मतलब 1 जनवरी तक हर साल रिवाइज हो जाना चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप अंडर डिलिमिटेशन एक्ट 2002, और ये मतलब प्योर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब ये ऐसा वो है मामला, इतना खतरनाक मामला है। वोटिंग एलिजिबिलिटी इंडियन सिटीजन 18+ इनरोल इन इलेक्टोरल रोल। आर्टिकल 326 आर्टिकल्स मतलब 61st अमेंडमेंट 1988 में ये हुआ था। नॉमिनेशन फीस एज ऑफ 2024 लोकसभा के लिए 25,000, जनरल स्टेट्स के लिए मतलब जनरल के लिए और SC/ST के लिए 12,500। आर्टिकल 84B की कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एंड लॉज। आर्टिकल 84B क्वालिफिकेशन फॉर MPs 25 ईयर फॉर लोकसभा 30 फॉर राज्यसभा। आर्टिकल 324 पावर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। आर्टिकल 326 इलेक्शन बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज 18+।
years. Article 81 distribution of seats among states based on population. Article 82 readjustment delimitation after each census. Article 82 कहता है readjustment delimitation after each census. Representation of People Act 1951 Section 4D क्या कहता है? Who can file nomination? Citizen whose name is in the electoral roll. Important amendments to remember. 42nd Amendment 1976 में हुआ. Froze seat allocation based on 1971 census till 2000. 84th Amendment 2001 में हुआ. Extended freeze till 2026. 87th Amendment 2003 में हुआ. Used 2001 census data for delimitation not seat allocation. एक बार देख लीजिएगा. 84th अमेंडमेंट जो हुआ था 2001 में वो मतलब ये बोला कि 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है. अब देखिए 87th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो 2003 में हुआ वो ये हुआ कि 2001 के सेंसस का इस्तेमाल करके डिलिमिटेशन हुआ, लेकिन वो सीट एलोकेशन के लिए नहीं हुआ. सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, बाउंड्रीज तय की गई. ठीक. 61st अमेंडमेंट 1988 में क्या हुआ, रिड्यूस्ड वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स. आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग. प्रेजेंट बेसिस फॉर स्टेट वाइज लोकसभा सीट क्या है, सेंसस ऑफ 1971. आर्टिकल 81(3) of the Constitution along with 84th Constitutional Amendment Act 2001 froze the allocation of seat based on 1971 census till 2026. (1951) used initially after independence but not applicable post 1976. 1976 के बाद अब ये एप्लीकेबल नहीं हुआ. 1961 का कोई वो नहीं है. Until when 1971 census based allocation continue 2026 तक. ठीक. 84th Amendment Act 2001 ने क्या कहा, इंसर्टेड ए प्रोविजो इन आर्टिकल 81(3) की सीट एलोकेशन shall can't be altered until the first census after 2026 possibly 2031. मतलब तब तक जब तक पहला 2026 के बाद पहला सेंसस होगा उसी के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन हो सकता है. 84th amendment and the 84th amendment has frozen the total number of Lok Sabha seats based on the 1971 census. The remains unchanged under which year 2026. Freeze extended to 2026 to encourage population control policies by not penalizing state with successful family planning. Relevant amendment 84th Amendment Act 2001. Delimitation freeze year by the Delimitation Council frozen till 2026. Delimitation redrawing of boundaries of constituency based on population. Delimitation Act 2002 was implemented using 2001 census data but only to readjust boundaries. सिर्फ readjust boundaries को readjust करने के लिए हुआ था, सीट को इंक्रीज करने के लिए नहीं हुआ था. ठीक. मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंशली. व्हाट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 500 मतलब 550 है. ठीक. अभी 543 है और 19 जो है उससे हैं क्या कहा जाता है, 19 जो है मतलब यूनियन टेरिटरीज से हैं, बाकी जो हैं मतलब 524 ये स्टेट्स से हैं. आर्टिकल 81 स्टेट्स दैट मैक्सिमम स्टेट 550 इलेक्टेड मेंबर्स, 530 फ्रॉम स्टेट्स और 20 फ्रॉम यूटीज प्लस 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स एंग्लो इंडियन मेंबर्स. लेकिन जो है अभी क्या मामला हो गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के बाद कि जो 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड सीट थी उनको मतलब हटा दिया गया. अब लेकिन अब क्या हो गया है
सिर्फ इलेक्टेड रह जाएंगे 550 लोग। ठीक, अब देखिए 545 दिस वाज द स्ट्रेंथ बिफोर 2020, लेकिन थ्योरेटिकली मैक्सिमम 552 जो थे थ्योरेटिकल मैक्सिमम बिफोर एबोलिशन ऑफ नॉमिनेटेड सीट। अभी क्या है, मतलब 550 जो है ये मैक्सिमम हो गया है इलेक्टेड ओनली। ठीक, अमेंडमेंट दैट रेज नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू इंक्रीजिंग लोकसभा मेंबरशिप फ्रॉम द स्टेट्स। तो 7th और 31st अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्या हुआ, रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स एंड फिक्स्ड लोकसभा स्ट्रेंथ टू 520। 7th में क्या हुआ, 1950 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये हुआ कि मतलब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया और लोकसभा की सीट्स को कितने पे, 520 पे स्ट्रेंथन किया गया। फिर क्या हुआ, 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973, इसमें जो मतलब स्ट्रेंथ थी 525 से क्या कर दिया गया, 545 कर दिया गया। ठीक, स्टेट्स अब 500 से 525 और यूटीज 25 से, मतलब यूटीज का घटा दिया गया, 20 कर दिया गया। जहाँ स्टेट्स में 500 होते थे 525 कर दिया गया, यूटीज में 25 से क्या कर दिया गया, 20 कर दिया गया। 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973 में। आर्टिकल 81 डिफाइंस कंपोजिशन एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स पोस्ट सेंसस। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 froze seat allocation based on 1971 census till 2026। 87th अमेंडमेंट 2003 में क्या हुआ, यूज्ड 2001 सेंसस ओनली फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिनेशन, ओनली फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन, नॉट सीट चेंज। 104th अमेंडमेंट एक्ट abolished Anglo-Indian nominated seats in Lok Sabha and State Assembly। Delimitation Commission autonomous body constitution under Delimitation Act latest in 22 मतलब 2002, सबसे ज़्यादा मतलब लेटेस्ट 2002 वाला था। सेंसस यूज 1971 सेंसस फॉर सीट एलोकेशन, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड चेंज पोस्ट 2031। अगला 2031 में आ सकता है। लोकसभा स्ट्रेंथ रेज्ड फ्रॉम 525 टू 545 इन विच अमेंडमेंट, 31st अमेंडमेंट 1973 में फाइनलाइज द स्ट्रेंथ, स्टेट 525 मेंबर्स, यूटीज 20 मेंबर्स, टोटल 545 इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक, 7th अमेंडमेंट 1956 रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स, लोकसभा स्ट्रेंथन 520। 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973 इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ टू 545। 31st अमेंडमेंट के बाद स्ट्रेंथ क्या हुआ 1973 में 545 हो गई। इसमें 20 जो था यूनियन टेरिटरी और 525 जो था वो ये था, अरे मतलब स्टेट्स। 42nd अमेंडमेंट 1976 फ्रोज सीट एलोकेशन टिल 2000। फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 एक्सटेंडेड फ्रीज टू 2026। 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 यूज्ड 2001 सेंसस फॉर डिलिमिटेशन, मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी का, मतलब 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 रिमूव्ड एंग्लो इंडियन सीट्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, 550। ठीक, आर्टिकल 81 मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 530 फ्रॉम स्टेट एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, 530 फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 331 रिपेल्ड इन 2020 allowed 2 nominated members from Anglo-Indian community if the president deemed under represented। टोटल यूज टू बी 552, लेकिन 104th अमेंडमेंट के बाद 550 हो गया। ठीक है,
देखिए जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 वाज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2001 डाटा बट ओनली टू रीएडजस्ट बाउंड्रीज नॉट इंक्रीज सीट। सिर्फ बाउंड्रीज को रीएडजस्ट करने के लिए हुआ था, सीट्स को बढ़ाने के लिए नहीं या घटाने के लिए नहीं हुआ था। व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ लोकसभा नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा? तो अभी 543 है। 530 सीट फ्रॉम स्टेट प्लस 13 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। ठीक, तो देखिए दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1, चंडीगढ़ से 1, अंडमान निकोबार से 1, पुडुचेरी से 1, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव से 2 और लक्षद्वीप से 1। तो अभी 543 टोटल स्ट्रेंथ है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा? 20 हो सकता है और स्टेट से 530। आर्टिकल 81B क्या कहता है? नॉट मोर देन 20 मेंबर्स टू प्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज। 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973 ने क्या किया था? घटा के 25 से 20 कर दिया था। ठीक, इन द जनरल इलेक्शन 2009 हाउ मेनी constituencies were from state? 530. As per Article 81, maximum of 530 seats are allocated to states. The remaining seat up to 20 go to UTs. In 2009 general election, full strength of the 543 elected seat was contested. 530 from state and 13 from UTs. UTs का क्या हो सकता है? 20 बढ़ा के किया जा सकता है, लेकिन कितना है? 13। How many seats are reserved for UTs in Lok Sabha? 20. Article 81B was amended in 31st Amendment Act 1973 and Goa Daman and Diu Reorganization Act. Not more than 20 members shall represent UTs in Lok Sabha. अभी क्या सीट्स की स्थिति है? दिल्ली में 7 हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हैं, लद्दाख में 1, चंडीगढ़ में 1, अंडमान में 1, पुडुचेरी में 1, लक्षद्वीप में 1, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में 2, टोटल 19। 1 सीट अनएलोकेटेड करेंटली। टोटल कितना है? 19 है, लेकिन चुनाव कितने पे हुआ था? 13 पे हुआ था। आर्टिकल फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा आर्टिकल 330, मतलब लोकसभा में जो रिजर्वेशन मिलता है एस सीज के लिए वो आर्टिकल 330 है। प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एस सी एंड एस टी इन लोकसभा बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन ईच स्टेट एंड यूटी। आर्टिकल 331 एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन रिपेल्ड बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट। 332 रिजर्वेशन ऑफ एस सी एस टी इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 332 स्टेट लेजिस्लेटिव में करता है और 330 जो है वो मतलब जो सेंटर के चुनाव होते हैं उसमें लोकसभा का। 333 एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट असेंबलीज आल्सो रिपेल्ड इन 2019। ठीक, तो ये हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी अगले पे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।